So, hello everyone. This is a expert talk series, and we have Dr. Pranita among us. This public awareness program is sponsored and hosted with Abhyuday Club and Wow Physio Fitness Studio. We are working for female health and fitness, and this specialized program is planned to reduce the stress among girls and ladies, the main concern of which is hormones. जैसा हम सभी जानते हैं, हम लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए हार्मोन सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, बट अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाए, यही हार्मोन्स हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं. और सबसे ज्यादा अगर ध्यान रखने योग्य समय होता है तो वो है मेंस्ट्रुएशन, मतलब पीरियड्स का. तो इसीलिए आज हमने डॉक्टर प्रणिता, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन इंस्ट्रक्टर है, उनको इनवाइट किया है ताकि वो हमें डूज डोंट्स about basic tips and expert talks बता सके कि हम कैसे इनका ध्यान रखें. To start with the program formally, I would like to invite our president, Mrs. Priyanka Agrawal, to say a welcome note and welcome our guest. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. As today we have gathered here to discuss about menstrual hygiene and puberty care, I, Priyanka Agarwal, President of Abhyuday Club, give a warm welcome to Dr. Pranita Sharma on the webinar to discuss about menstrual health and puberty hygiene and to enlighten us on this severe issue in women's day-to-day life. After that, I would like to welcome Dr. Ruchi Jain, who is the moderator of this project. Welcome, ma'am. Last but not the least, I would like to welcome all WOW Physio Fitness Studio members and Abhyuday Club members for sparing your precious time for this webinar and gaining the knowledge and discussing on this topic. Thank you. Thank you, Priyanka. Thank you very much. Now, I would like to invite Mrs. Renu Agrawal, mentor of Abhyuday Club, to introduce our guest today. Thank you so much, Dr. Ruchi Jain, and thanks for arranging such type of webinar for us. I think everyone would be getting benefited with it. And I'm very honored to introduce such an amazing lady, Dr. Pranita Sharma. She's assistant professor of Index College of Physiotherapy, Indore, and also head of the team of Pranita, menstrual hygiene instructor, conducted around 60 door-to-door surveys in underprivileged sectors or communities, conducted many webinars on effectiveness of menstrual cup. She was the physiotherapist at the Choitham Hospital also, had the 11-year experience in birth, rehabilitation, rehabilitation, antenatal care, and many more fields. Of course, she was awarded with the Nari Shakti Award for being most among 51 most influential women of Indore in 2019. Awarded with Young Achievers Award in Sports Connect Conference in 2018. Got awarded for the contribution in menstrual hygiene awareness. We are very proud to have you, ma'am. Seriously, आपको इंट्रोड्यूस करने में मेरा पूरा पेज लग गया था. Literally, such an amazing lady you are. Literally. Thank you, Renu. Thank you so much. डॉक्टर प्रणिता के बारे में एक सबसे खास बात जो मुझे अट्रैक्ट करती है, शी इज अ नाइस लेडी, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, बट द थिंग इज कि हम सभी सोचते हैं कि हम जिंदगी में कुछ ऐसा करें जो एक मिसाल बन जाए, और अकेले चलना इस राह पर और राह बनाना जंगलों के बीच में, कांटों के बीच में, वो कुछ लोग ही कर पाते हैं. प्रणिता इज अमंग देम. डॉक्टर प्रणिता ने सम 3 years बैक थिंक अबाउट कि यार मेंस्ट्रुएशन इज गोइंग थ्रू, एंड सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान होता है तो पैडमैन मूवी का अक्षय कुमार एक्ट करने के बाद भी नहीं हुआ होगा, पर सीरियसली हम लोग परेशान होते हैं. एंड प्रणिता ने अपनी सिस्टर रुचिता के साथ मिलकर एक विंग शुरू किया, जो इनका पर्सनल अटेम्प्ट है सोशल सर्विस के लिए. ये अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में जाकर वहाँ लोगों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताते हैं, उनको सैनिटरीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल फेनोमेना, इट्स नॉट अ टैबू, ये मैसेज सबके बीच में देते हैं. जब मैंने इनकी कुछ पिक्स देखी, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल. इन्होंने देखिए कितने अच्छे से काम किया हुआ है. ये इनकी पूरी टीम है. स्टार्टेड विद 6 members, इन बिटवीन 8 हो चुके थे, बट नाउ दे आर 4 एंड स्टिल वर्किंग इन कोविड सिचुएशन टू.
दिस इज अबाउट, देखिए किस तरह की सोसाइटीज में जाकर ये लोगों को समझाते हैं। आज भी हमारे घरों में आई रियलाइज हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं और अगर हम कहते हैं पीरियड्स आ गए हैं तो दे मेक अ फेस, डोंट स्पीक। पुरुषों के सामने नहीं बोलना, समाज के सामने नहीं बोलना, बट एक्चुअल में ये नेचुरल फेनोमेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग कैसे करेंगे? और खास तौर पे जो पढ़ी लिखी बस्तियां नहीं हैं, जो गरीब हैं, जो समझते नहीं हैं और आज भी उनके पास सैनिटरी तो बहुत दूर, कपड़ों की भी व्यवस्था नहीं होती है, उन लोगों के बीच में जाके प्रणीता और उनकी टीम उनको समझाती है, सारी बातें हैंडल करना सिखाती है। This is seriously something very, very incredible. I'm very happy with you, Dr. Pranita, and you're really adorable. And Thank you so much. honestly, Clapping for your ये such an amazing work. Thank you. सबसे अच्छी बात जो इसमें लगी कि इनका ये एनजीओ नहीं है, दिस इज समथिंग ये खुद ही कर रहे हैं। सारा फंडिंग, सारा खर्च ये खुद ही उठाते हैं। कभी अगर कोई सेल्फ आके आगे हेल्प करता है तो फाइन, अदरवाइज जो है जैसा है सैलरी में से, घर के खर्चे में से निकाल कर ये वहां स्पेंड करते हैं। तो दिस इज वेरी अमेजिंग। मतलब शायद हमारा खर्चा पूरा घर की ग्रोसरीज और मेकअप किट्स को कवर अप करने में चला जाता है और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, बट अगर मैं इसको जैनिज्म के हिसाब से कवर करूँ तो औषधि दान जिसको हम कहते हैं कि अगर हम किसी को दवाई और बेसिक चीजें मुहैया कराते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे लिए फ्यूचर का सेफ रोड खुलता है। तो प्रणीता, मैं जब से ये प्लान किया था तब से सोचकर बैठी हूँ कि प्लीज फ्रॉम माय बिहाफ आई वुड लाइक टू डोनेट समथिंग फॉर यू एंड योर टीम। आप अपने हमारे हिसाब से अगर आप कुछ ले सकते हैं तो मैं 1000 रुपीज मेरी तरफ से कैश डोनेट करना चाहती हूँ आपकी टीम परिणीता को, और अगर आगे भी कुछ हेल्प लगे तो प्लीज कवर अप। अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहे एट द एंड ऑफ द सेशन तो यू कैन कम अप एंड डोनेट। एंड हम शायद अब शुरू करें, तो ओवर टू यू प्रणीता, इफ एनीबडी वुड लाइक टू से एनीथिंग प्लीज। Can I take a second? Yes, please, Renu. Take a minute. Yeah, Dr. Pranita, I'm the founder of this club, but अभी मैं founder की तरफ से नहीं, मैं मेरी बेटी की तरफ से, बिकॉज ये एक गर्ल का कनेक्शन होता है, गर्ल के वो समझ सकती है, वो अभी इस लायक नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है कि ये सारी चीजें समझ पाए, बट उसके बिहाफ पे आई ऑल्सो वुड लाइक टू डोनेट समथिंग टू योर प्रणीता टीम। आई थिंक 1000 रुपीज में थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा भी हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। 1000 रुपीज में अभी जो करंट सिनेरियो है, वी ऑल कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि जो झुग्गी झोपड़ी पड़ती है ना, एक्चुअली वहां मतलब वी ऑलवेज सी एंड वी एवरीवन, ईच वन ऑफ अस ऑलवेज थिंक नो कि हम किस तरह से उनकी हेल्प कर पाए। दैट इज नॉट द सीन कि हम उनको इग्नोर करते हैं। द ओनली थिंग इज हम वो वे नहीं ढूंढ पाते हैं कि हाउ वी कैन हेल्प देम, है ना। वी ऑल आर सो जेनरस एंड यू नो इस टाइम पर इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन अगर हम उनको किसी, हम एक लेडी को उसके एक पीरियड्स के भी हम पैड्स दे दें तो दे विल बी मच ऑब्लाइज्ड। वो उनको, उनके लिए वो एक बहुत बड़ी चीज रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड जेस्चर। थैंक यू डॉक्टर। नाउ ओवर टू यू, आप अपना टॉपिक स्टार्ट कीजिए। हमारे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, इन बिटवीन कनेक्ट होते रहेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प लेना चाहेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपकी गाइडेंस लेना चाहेंगे। ओवर टू यू नाउ, यू आर माय को-होस्ट सो यू कैन शेयर योर कंटेंट्स टू। ओके मैम, थैंक यू सो मच। So I hope the screen is visible to all. सभी लोगों को ये देख रहा है? Ma'am, is it visible? Yeah, अभी आपकी it is visible. Okay, okay. Great. First of all, see, ऐसा मत सोचिएगा ये PPT है and all. मैं बहुत सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू डॉक्टर रुचि मैम कि आपने मेरा इतना ज़्यादा आपने मेरी तारीफ करी। इतना भी कुछ नहीं है मैम, आई एम योर जूनियर, आई एम सो जूनियर टू यू। एंड सबसे अच्छी बात, एक बहुत अच्छा कनेक्शन है आप सभी लोगों से मेरा,
because मेरा birth चंदेरी में हुआ है, but I am born and I am brought up in at Guna only. From Oh, first, wow. yeah, from first class to 12th class, I was a student of Kendriya Vidyalaya Guna. So Guna is Great. like, Guna is my hometown, and my mother, she has started working from that head post office Guna. My father, my all brothers and sisters, Guna is like our hometown, no? So we have a close Wow. connectivity with Guna. हम लोग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते थे, तो इसीलिए जब रुचि मैम ने कहा तो मुझे ऐसा लगा कि दैट इज अ रियल ऑनर एक्चुअली. मतलब मैं अगर कुछ कर पाई और उससे आप लोग का थोड़ा सा भी मैं आपको कुछ वो कर पाई, तो दैट विल बी अ प्रिविलेज टू मी. तो मैंने वहाँ वर्क किया है, तो मैं बाय प्रोफेशन देखूं तो मैं रुचि मैम से बहुत जूनियर हूँ, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर अलॉट, क्योंकि शी इज डूइंग अमेजिंग वर्क, not just in profession but in social thing also. And like this Abhyuday Club, आप सभी लोग, रेनू जी and I sorry I forgot the name of Miss President, but she is also Priyanka. Yeah. So you all, that young girl, and you all of you are doing marvelous job, because actually this is need of the hour. Through all these things, if we are doing a little contribution to society, and if we are changing just 2 minds, that is a big contribution. क्योंकि वो फिर क्या होता है ना, आगे बढ़ता जाता है, that is a change. So I'll try to keep my presentation simple, and as Ruchi ma'am said, at the end, kuch bhi queries, I'll try to resolve whatever you ask me. So here I'm beginning my session, and this is the topic given to me was is menstrual hygiene and puberty care. As there is enough introduction about me, so I'm not repeating the things again and again. I'm just proceeding to my presentation. Okay, so this slide is first. What actually is puberty? प्रणिता, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है. I can't see. Can anybody see Priyanka? आपको विजिबल है प्रणिता की स्क्रीन? Just a minute. I can see her face. I can see her face and hear her, but not the screen that she wants to share. Screen is not visible, Pranita. Your PPT is not shareable. Ma'am, just a minute. I'm stop sharing, and then I'm again sharing the screen. Okay, give me a second. Okay. Start it. Okay, ma'am. So, what is puberty? This I have included as the first slide. I want to know कि यहाँ पर कोई young girl है क्या? I just want to keep this presentation as an interactive one. Young girls, I don't think किसी की बच्चों ने join किया हुआ है. Okay, but I think कि मम्मियों को समझा देंगे तो काफी easy going हो जाएगा उनको अपने बच्चों को explain करने में, because कई सारी girls हैं जो अभी puberty की तरफ अग्रसर हैं. जो हमारे बच्चे हैं, काफी सारी ladies हैं, उनके बच्चे अभी puberty की तरफ जा रहे हैं. तो we can talk to our, अगर हमें पता होगा तो हम अपने बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे. बहुत ही right. किसी के बच्चे हैं तो बता दीजिए, so that content will be like that. I don't think कि किसी के बच्चे हैं, सभी ने खुद ही join किया हुआ है, I guess. Okay, no problem. And that is best actually. अगर mother ही teacher हो जाए तो उससे अच्छा education कुछ होगा ही नहीं. तो आप में से कोई भी मुझे बता सकते हो कि puberty जो word है, अगर हमें कभी introduce करना पड़े हमारे बच्चों को, तो how will we introduce? What do we mean by puberty? डॉक्टर प्रणिता कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे ताकि इंटरैक्टिव सेशन रहे. ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर करें तो बहुत मजा आएगा. मैं आंसर नहीं करूंगी, मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं और प्रणिता तो बातें करते रहते हैं.
But I want Actually. from club, from my studio, please आप लोग अपना raise hand करें so that I can put you in spotlight और आप answer करके थोड़ा interactive session बनाएं. यस यहाँ पर वाइवा नहीं हो रहा, मतलब दिस इज जस्ट अ सिंपल थिंग कि कभी हमको अगर कभी ऐसे बताना पड़े कि मतलब हमारी बच्ची को या हमसे सडनली यू नो कभी कभी बच्चे बहुत अनयूजुअल से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. तो जैसे बच्चे ने हमसे पूछ लिया कि मम्मा ये प्यूबर्टी वर्ड आया ये मेरे सामने एक उसमें, तो प्यूबर्टी मतलब क्या, तो मतलब इससे अपन क्या समझे, कोई भी मुझे कुछ भी बता सकता है क्या? लाइक आपका बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं यस एंड यू गॉट पिंपल्स, आपको मोर मेच्योर फेस लगने लगता है, आपका किड्स फेस की जगह आप मेच्योर लगने लगते हो. ये चेंजेस है, बेसिक चेंजेस जो हम बच्चों को बताते हैं. Yes, exactly. Very nice, very nice. So अगर हम इसको मतलब थोड़ा टेक्निकली या थोड़ा हम मेडिकली इसे डिफाइन करें, आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है और वैसा ही हमें बच्चे को बताना चाहिए आइडियली. And how we can just define it medically, this thing puberty, it is the period during which the adolescent girls, they just reach to the adolescent girls and boys, they just reach to the sexual maturity. And now they have started developing so many changes, so many changes started developing inside their body, at the emotional level, at the physical level, at the mental level, at the emotional level. Means there are so many changes and going on different levels. So जैसा कि हमने इस स्लाइड में मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा पिक्टोरियल जैसा लगाया है कि मतलब क्या, जैसा अभी बताया आपने कि फेस जैसे होता है बच्चों का, अचानक से बच्चियां एकदम दे गेट वरीड एंड स्पेशली वो जो टीन एज होती है वो पूरा एक बहुत सेंसिटिव फेज रहता है जब दे स्टार्ट डेवलपिंग सो मेनी चेंजेस. They start developing pimples on their faces, their height suddenly increases, they get sweat in the armpits, the breast suddenly it increases in size, and they have started developing the armpit hairs, the axillary hairs, and the hairs in the pubic area. तो साइड में मतलब उनके हेयर्स आने लगते हैं, पैरों के बीच में उनके हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, सडनली उनके इमोशनल चेंजेस होने लगते हैं, मूड स्विंग्स होने लगते हैं बहुत ज्यादा, एंड दे गेट इरिटेटेड ऑन वेरी स्मॉल थिंग्स, एंड अ मेजर चेंज इज menstruation. And you know, usually all these things are natural, एंड हम बहुत ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करते. टू बी वेरी फ्रैंक, हम बात नहीं करते इन चीजों के बारे में. एंड इफ आई थिंक अबाउट माय चाइल्डहुड एंड इफ आई थिंक अबाउट माय दिस थिंग फर्स्ट पीरियड, अभी हम सब लोग अगर अपना अपना फर्स्ट पीरियड सोचें तो हाउ यू वाज इंट्रोड्यूस्ड टू योर फर्स्ट पीरियड, ऐसा करके हम अगर एक जस्ट अपने आप को पास्ट में लेके जाएं. So, this thing was introduced to me by my father, because he was ironing my clothes, and suddenly he found a stain there. So then he got to know, and he he didn't came to me directly. He just went to my mother, एंड मम्मी मेरे पास आई एंड मम्मी बोलती हैं कि शानू बैठो, ऐसा ऐसा है, तो आपको मतलब ये आपको पीरियड्स आ गए बेटा और ये ऐसे ऐसा होता है इसमें. एंड द गुड पार्ट वाज मम्मा ने मेरे को पहले से ये थोड़ा सा बता के रखा था. उन्होंने मुझे एक जनरल कंसेप्ट मेरे दिमाग में डाल के रखा था कि अभी क्या, आपको कभी भी शानू इस तरह से आपको कुछ अगर आपको ऐसा हो या कुछ ऐसा ब्लड वगैरह ऐसा हो तो आप मुझे बताना, इमीडिएटली यू जस्ट कम टू मी एंड यू कन्वे दिस टू मी एंड देन आई विल एक्सप्लेन मच मोर. तो ये मुझे याद है बहुत अच्छे से. अभी मैं अगर इसको वो करूं, इसका रिवर्स सोचूं
कि अगर मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होता कि कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है, या सडनली जस्ट मैं कहीं पर भी हूँ एंड इट्स द पीरियड दे जस्ट केम, फिर मेरा क्या वो होता, मेरा क्या रिएक्शन होता? डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा फ्राइटन हो जाती, बहुत डर जाती, शॉक्ड हो जाती। एंड ये रिएक्शन मैक्सिमम गर्ल्स का रहता है व्हेन दे गेट देयर फर्स्ट पीरियड्स। आप में से कोई भी मुझे एक दो लोग बताओ कि आपके फर्स्ट पीरियड की क्या स्टोरी है, कोई भी। लेट्स बी वेरी वेरी फ्रैंक ना, ये कोई वो है ही नहीं। हेलो। हाय हाय प्रियंका। हाय मैम, आई रिमेम्बर मैं मतलब यूजुअली नाइट में सोने से पहले आई वेंट टू अ वॉशरूम एंड देन आई सडनली रियलाइज कि ड्यूरिंग दैट देयर वाज मतलब मुझे ब्लड दिखा एंड वाज माय फर्स्ट टाइम एंड नो वन हैज एवर टोल्ड मी एनीथिंग अबाउट दैट, नॉट माय मदर, बिकॉज आई गेस आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड एंड शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 8th स्टैंडर्ड इतना जल्दी होगा। Yes. And I was so scared. I just watched it and I went to sleep. कि पता नहीं क्या हो गया, मम्मी डांटेंगी, मेरे को लगा मुझे खेलते वक्त कुछ लग गई होगी, मैं सो गई डर के मारे। एंड व्हेन आई वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन आई सॉ इट एंड फिर मैं इतना डर गई, फिर मैंने जाके मम्मी को बोला, मैं मम्मी पता नहीं क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बस मुझसे बोला, मतलब शी केम टू द वॉशरूम, उन्होंने मुझे बताया उसको कैसे वेयर करना है। देन शी टोल्ड मी कि तुम अब जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लो एंड आज स्कूल नहीं जाना है, यू जस्ट गो एंड टेक अ रेस्ट। फिर उसके बाद जाके शी टोल्ड मी एग्जैक्टली कि दिस इज द प्रोसेस एंड हाउ इट्स बीन डन। Exactly. My story was so very Correct. funny actually. मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ होता है। लाइक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोई पीरियड से आने लगे थे, कुछ नहीं आते थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर चुके थे, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि क्या होता है। हमें नहीं पता था बिकॉज हम कभी नहीं हुए थे, तो हम उनसे पूछे कैसे होता है, कैसे होता है, तो दे मतलब उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा सब कुछ होता है। जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये सारी चीजें हुई, मेरा पीरियड आया, तो मैंने मॉम से बोला, मम्मी ऐसा ऐसा हो गया, मुझे पेट दे दो। मेरी मम्मी बिल्कुल ऐसे ही दिखती है कि ये क्या है। तो That is also very unacceptable actually. वो भी मम्मा लोगों को बड़ा वो लगता है कि मतलब how they get to know. मम्मा ने बोला कि ये क्या है, मतलब लाइक, और शी वाज पैकिंग फॉर द, मतलब लाइक मेरे नाना जी के यहाँ जा रही थी एंड वो पैकिंग कर रही थी। इस बीच में एकदम से ये सारी चीजें होती हैं, तो वो 2 मिनट तक तो शांत बैठी रही कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। फिर शी चेक्ड के हाँ क्या हुआ है, पूरी चीजें पूछी। तो लाइक मेरी वो स्टोरी तो एज इट इज फनी थी, काफी फनी थी। मुझे आज भी वो फेस याद आ जाता है कि हाँ मम्मी ऐसे देख रही थी। But it's really good that you were already aware of the fact. Yeah, and I was. Priyanka, it's actually जो आपकी वो थी, आपका जो mental state था, you can easily correlate कि भाई वो कैसा उस टाइम पर अपने को एकदम ना शॉक में अपन आ जाते हैं, because Exactly. blood is something and that too from that area हम accept नहीं कर पाते ना उस fact को। And here actually I want to share one thing. जब हम लोग menstrual hygiene surveys में, अभी तो because of this COVID crisis we are not literally going on every Sundays, हम लोग बस उनको कभी कभी जाकर सप्लाई कर देते सैनिटरी पैड्स, हमें जैसे भी होता है थ्रू ऑनलाइन थिंग एंड ऑल, वी आर एजुकेटिंग देम। बट जब हम जाते थे तब एक बस्ती में जब हम गए थे, तो देयर नो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, व्हाट आई वाज डूइंग स्टार्टेड डूइंग इन माय सर्वेज, जो यंग गर्ल्स होती हैं which are at least 9-10 years or 11 years, I usually take them in my surveys. I start counseling them only with their mothers. Means along with the distribution, along with the awareness of menstrual hygiene, I start talking to them about puberty also. हमारे पूरे टीम मेंबर्स हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनकी माओं को भी समझा सकेंगे कि आप ये जो पीरियड कंसेप्ट है ना, आप ये अपनी बेटी को पहले से समझा कर रखो। You know, that is a very very important point, and this point nobody is understanding this point कि कितना जरूरी है पहले से उनको बताना कि प्यूबर्टी क्या होती है, ये चेंजेस क्या होते हैं। यू माइट नॉट नो दिस वर्ड प्यूबर्टी, आप मत बताओ ऐसे, बट आप ये तो बता सकते हो कि
बेटा तुम्हारे शरीर में कुछ चेंजेस आएंगे, तुम्हारा शरीर अभी बदलेगा एक टाइम के बाद, और ये चेंजेस रहेंगे, वो तो घबराना नहीं, क्योंकि ये सब प्राकृतिक है, ये सब हमारा ये एक लाइफ का एक पूरा प्रोसेस है। बट होता क्या है, यूजुअली अचानक से उन्हें पता चलता है। एंड जैसा कि अभी प्रियंका ने कहा कि मम्मा ने उसकी बोला था कि बेटा आप स्कूल मत जाओ, we all are actually literate and very well aware, वो that was just before कि उसको एक थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए उन्होंने, उनका वो कंसर्न था। बट यू नो द हार्ड फैक्ट इज, इंडिया में बहुत सारी बच्चियों का स्कूल जाना बिल्कुल छुड़वा देते हैं when they get their first period. So period is the end of education in so many places, and that is really pathetic. And that is just because of lack of menstrual hygiene awareness, lack of sanitation, lack of cleanliness, and so many major resources that are unavailable for maintaining the hygiene during periods. So that's really pathetic. अभी एक और फैक्ट, तो हाँ, जब मैंने एक बस्ती में जब मैंने ये बताया उसको, बच्ची को, सडनली हर मदर स्टॉप्ड मी एंड शी सेड, बेटा तू अंदर जा। अरे दीदी अभी से क्यों बता रही हो आप उसे ये सब, प्लीज मतलब तुम मत बताओ दीदी, तुम मत बताओ, ये तुम अभी से क्यों बता रही हो उसको। तो आई सेड ओके, आई विल नॉट टेल हर, देन यू टेल हर, कम ऑन यू टेल हर नाउ। तो कहते अभी क्यों बताएं, दैट मीन्स कोई मतलब अलग से कोई एक मुहूर्त आएगा, कोई अलग से एक टाइम आएगा जब आप बताओगे, और अगर आप पहले से अपनी बच्ची को बता दोगे तो व्हाट विल बी द ड्रॉबैक, शी विल बी अ लिटिल मोर प्रिपेयर्ड मेंटली एंड साइकोलॉजिकली कि अब ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर रहना है। अरे कीप अ पेट इनसाइड हर बैग कि बेटा देख कभी भी अगर तेरे को ऐसा लगे, उसको एक, आजकल तो हर जगह हर घर में एंड्रॉइड फोन है, हम मस्त से यूट्यूब वीडियो कोई भी देख लेते हैं, आजकल गूगल माइक्स हैं, मीन्स अगर आप लिटरेट भी नहीं हो तो आप जस्ट उस पर बोल दो एंड दे विल शो एन नंबर ऑफ वीडियोस टू यू। अरे एक वीडियो आप दिखा दो बच्ची को अपनी कि कैसे आपको पहले पीरियड के लिए प्रिपेयर रहना है, और कीप अ सैनिटरी पैड इनसाइड हर बैग। यहीं पर मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ, एक चीज और वो करना चाहती हूँ कि हम सभी के घर में मेड्स आती हैं, बाइयां आती हैं, तो मैं हमेशा अपने हर वेबिनार में हर उसमें ये बोलती हूँ कि आप जैसे ही आप मेरे वेबिनार को अटेंड करते हो, यू विल बी अ पार्ट ऑफ माय टीम परिणीता। हाउ यू विल बी द पार्ट, क्योंकि अभी आपके घर में जो भी मेड्स आती हैं, व्हेन यू विल गेट इन टच विद एनी फीमेल हु इज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड ऑल, देन यू जस्ट आस्क देम कि आप क्या यूज करते हो, आप उनको बताओ कि कपड़ा यूज करना गलत है। एक्चुअली कपड़ा यूज करना गलत नहीं है, कपड़ा यूज करना तब गलत है जब आप उसे इम्प्रॉपर तरीके से यूज करते हो। दूसरा फैक्ट, अगर आप कपड़ा यूज कर रहे हो देन आपको उन्हें आवरली चेंज करना है, हर घंटे में, वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि पूरा मॉइस्चर वहां रहता है, और देन इट स्टार्ट इन्फेक्टिंग अवर वेजाइनल फ्लोरा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हाई सैनिटरी पैड्स आर बेस्ट ऑप्शन वहां पर रादर देन क्लोथ्स। और फिर उसके बाद क्या होता है, गाँव अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज वगैरह में, और मोस्टली जो लोग कपड़ा यूज करती है वो क्या करती है, फिर उनको वॉश करती हैं और उसके बाद वो उसे ऐसी जगह पर टांग के सुखाते हैं जहां पर ना धूप आती है ना वो उसको फिर प्रेस करते हैं, मतलब आप सारा ऐसा अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट बना रहे हो जिससे आपको इन्फेक्शन होगा। So that is why we should stop such practice. That is wrong practice. तो हम अपने घर की बाइयों को समझाएं कि वो अपनी बच्चियों को अवेयर करें इन चेंजेस के बारे में, and that is how you all will be connected to my team. And I know already you all are, some of you are doing this thing definitely. मुझे पता है रुचि मैम तो करते ही हैं, मुझे पता है कि वो किस लेवल पे एजुकेट करती हैं फीमेल्स को। यस मैं मेरे पूरे स्टाफ को सैनिटरी know. प्रोवाइड करती हूँ, और मेरे पूरी मेरे असिस्टेंट्स हैं यहाँ घर में, मैं अभी 12 लड़कियां काम करती हैं मेरी क्लिनिक पर और घर में मिलाकर,
सभी को ये चीजें हमेशा से मैं देती आ रही हूँ, Yes, because ma'am. health I know. is the best precious thing, I believe. Yes, ma'am. Definitely, ma'am. Definitely. So that is the first thing. इस चीज के साथ हमने काफी सारे फैक्ट्स डिस्कस किए कि जब हम लोग अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज में जाते थे तो दैट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, वो एक डिनायल रहता है उन लोगों का कि नहीं, इस बारे में हमें बात नहीं करनी है, जब आएगा तब बता देंगे, जब आएगा तब स्कूल ही छुड़वा देंगे, दैट इज ओके फॉर देम, बट बताएंगे नहीं, है ना। ये उन लोगों को एक वो रहता है, जबकि आजकल गवर्नमेंट की तरफ से जो इवन आंगनबाड़ीज हैं वहां पर, इवन स्कूल्स जो हैं वहां पर, दे गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सैनिटरी पैड्स टू द गर्ल्स, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग आयरन सप्लीमेंट्स। आयरन सप्लीमेंट्स तो मैं जब छोटी थी स्कूल में थी तब से गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इन द स्कूल्स। दैट मीन्स देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज जो आप शायद घर पे अपनी बच्ची को ना दे पाओ, बट वहां पर उनको मिलेंगी। दे आर प्रोवाइडिंग मिड डे मील्स, सो ट्राई टू अवेल दोज फैसिलिटीज, एंड वो चीज हमें एजुकेट करनी है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। When your girl, I have added this slide for you all, when a girl gets her first period, when our daughter, when any daughter gets her first period, no, she should be congratulated. She should be congratulated by any manner, by any means. Being a mother, because even I have a daughter, I have a very small daughter. She is just 15 months right now. बट ऐसा मैंने सोचा कि मतलब उसको मैं करूंगी कॉन्ग्रेचुलेट, उसको मैं बोलूंगी कि बेटा वेलकम टू विमेनहुड, एंड दैट इज हाउ आई ऑलवेज वांट कि उसका वो फर्स्ट पीरियड ना उसके लिए हमेशा यादगार रहे इन अ गुड वे। उस तरह से मैं उसको यादगार बनाऊंगी। सो दैट इज माय एडवाइस टू ऑल कि हमको उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, एंड दैट इज नॉट माय कंसेप्ट। You know, in Kerala and in many parts of South India, they used to celebrate their first period of their daughter. पूरा एक शादी ब्याह के जैसा एक पूरा फंक्शन करते हैं वो लोग, and they used to give their daughter a lot of gold and so many precious gifts they used to give their daughters. And you know, उसको ऐसा फील कराया जाता है कि नाउ यू आर बिकमिंग अ विमेन, एंड दिस इज समथिंग दैट इज अ ब्यूटिफुल फेज ऑफ योर लाइफ इज नाउ स्टार्टिंग। सो इजंट इट अ ग्रेट कंसेप्ट? नाउ हियर आई वुड लाइक टू आस्क हाउ मेनी ऑफ यू हैव गर्ल चाइल्ड? हाउ मेनी ऑफ यू? I have raise hands. Yes, Ruchi Raise ma'am hands. has. Yes, I have 2 daughters. Okay, I have Those 2 who are daughters. blessed with And me daughters. too. great. That's amazing. That's amazing. Okay, so almost all of us are blessed with the joy of this world. You know, daughters are the biggest joy in this world. ठीक है, बेटा बेटी वो ठीक है, बट सच्ची जो प्लेजर बेटी के होने से होता है वो किसी के होने से नहीं हो सकता घर में। अलग ही रौनक रहती है। यस मैम। तो और अभी कितने जो हम में से कितनी है जिनकी बच्चियों को पीरियड्स स्टार्ट हो गए? नन ऑफ अस? But they are in phase off. Okay, Like my okay. elder daughter, she's 9 years old. So in a year or two, maybe she will be starting Yeah, having it. changes started in her. Yeah. In her body. Okay. So I was thinking. Okay. Great. So I hope, ma'am, this presentation will help you to explain some things about it. Yeah, So, surely. Yes, I of was so course. excited about this.
So that is why I have added this slide that see उनके periods को ना एक इतना वो बना देना चाहिए हमको फर्स्ट पीरियड पहले तो हमें उनको पहले से इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए अच्छे से कि भाई आपको ना ये चेंजेस आपके बॉडी में आएंगे सो प्लीज डोंट बी अशेम दैट इज सो नेचुरल एंड पीरियड्स आर पार्ट ऑफ इट just like other secretions in our body in periods you will have this menstrual blood discharge so किसी भी तरह से अभी जिसकी भी बच्ची को आप में से होने वाला है अभी आप आइडियस सोचो कि आप किस तरह से उसको कंग्रेचुलेट करेंगे उसके फर्स्ट पीरियड पे सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड menstruation so menstruation see a period menstruation charms periods there are so many names for this menstrual cycle महीना माहवारी बहुत सारी चीजें होती हैं A period happens because of changes in hormones in the body. And hormones क्या होते हैं मैंने बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल चीज़ें ऐड नहीं करी हैं जस्ट अ लिटिल थिंग जो हम ऑलरेडी जानते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे लिए टर्म्स हार्मोन्स क्या होते हैं केमिकल मैसेंजर्स होते हैं एंड यूजुअली जो ओवरीज होती हैं दे रिलीज टू मेन हार्मोन्स दे आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन and these hormone actually causes the lining of the uterus or womb जहां पर जिसे हम बोलते हैं हिंदी में बच्चेदानी उसकी जो लाइनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम उसको बनाते हैं ये हॉर्मोन्स उसमें इनका रोल होता है द built up lining is now ready for a fertilized egg to attach to and start developing अभी यही लाइनिंग क्या करती है ये जो एग रहता है जो ओवम रहता है अगर वो फर्टिलाइज हो जाए तो आगे वही चीज प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होती है दैट इज हाउ अ फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट एंड अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो फिर वहां से ऐसा रहता है कि वो मेंस्ट्रुअल ब्लड के थ्रू दैट इज मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज एवरी मंथ वो शेड ऑफ होता है वही endometrial lining and that unfertilized ovum and because the same process happens all over again every month and usually ये जो साइकिल रहती है 28 डेज की रहती है प्लस माइनस 7 is considered acceptable and usually takes a month that is why हम बोलते हैं कि भाई महीना क्योंकि वो हर महीने आता है इसीलिए उसको महीना बोला जाता है एंड बिकॉज वो एक ऐसा एक साइकिल जैसी है दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आप बहुत सिंपल तरीके से अपनी बच्ची को ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कंसेप्ट एंड एट द सेम टाइम यू शुड एक्चुअली गिव हर सेक्स एजुकेशन ऑल्सो बिकॉज प्यूबर्टी की एक डेफिनेशन ये बोलती है कि now the female that is ready to reproduce अभी वो रिप्रोडक्शन के लिए एकदम रेडी है वो एकदम उसके बॉडी पार्ट्स प्रिपेयर्ड हैं and that is why a girl should actually know the things that are very essential for her तो आप यहाँ पर उनको समझा सकते हो बहुत अच्छे से गुड टच और बैड टच तो आजकल हम बच्चों को बहुत छोटे में ही समझा देते हैं एंड दैट इज अगेन द नीड ऑफ द आवर क्योंकि जो जिस तरह की घटनाएं पूरा चारों तरफ हो रही हैं उसमें अगर हम बच्चों को गुड टच और बैड टच जितना जल्दी समझा सकें उतना अच्छा बट जो एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन है वो हमें अपनी बच्ची को इस एज में जब हम उसको प्यूबर्टी समझा रहे हैं तभी हमको उसको ये दे देना चाहिए कि बेटा अभी कुछ हार्मोन चेंजेस होते हैं और जो आपका यूट्रस नाउ यू आर बिकमिंग अ लेडी नाउ यू आर बिकमिंग अ बिग विमेन तो अभी वो चेंजेस आपके बॉडी में स्टार्ट होने लगेंगे
और फिर ऐसी करते करते एक दिन आफ्टर योर मैरिज दीज चेंजेस विल एक्चुअली, आपको समझ में आएगा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन वही ओवम जो हर मंथ आपके बॉडी से बाहर जाता था, अभी वो एक आपका बेबी बनाने में हेल्प करेगा। आपका बेबी बनेगा वो छोटा सा ओवम, जो जब अनफर्टिलाइज था तो हर महीने वो बाहर जा रहा था। आप यहाँ पर उसको इस तरह से बहुत सिंपल सिंपल टर्म्स में आप ये वाला कंसेप्ट उसको समझा सकते हैं। And this is the time when I should tell all of you that I was actually my gynecologist, no, Dr. Deepa Joshi ma'am here at Indore. She introduced me this comic. Is it visible to all? Yes, it's visible. Yeah. Mastropedia. Yeah, Mastropedia ma'am. I have You know, seen this about this on FB. Yeah. Even after purchasing this, I have seen many of its advertisement on FB. Yeah, And you know, it is, I think it is also coming in Hindi, Hindi also. It is made by Stay Free. And you know, this is a amazing guide. This is an amazing guide. Means in this there are छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं, वो अचानक से ऐसे गॉसिप जैसा करने लगती हैं, और फिर उसके बाद वो एक उनकी डॉक्टर दीदी रहती है, वो बहुत अच्छे से उनको एक एक चीज बताती है, एक एक चीज कि किस तरह से the physical changes happens in your body, किस तरह से the psychological changes happen in your body, क्या होता है, जो प्री menstrual symptoms होते हैं वो क्या होते हैं। कुछ बच्चियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, कुछ बच्चियों को बहुत ज्यादा पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, लेग क्रैम्प्स होते हैं, बैक पेन होता है। तो एवरीथिंग आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू, अगर आपकी बच्चियां हैं तो आप प्लीज ये कॉमिक जरूर मंगवाइएगा। इट इज easily available online, and you can just, I will share the name with you all and you can just call it, और आप बस उसको अपनी बच्ची को ये पढ़ने के लिए दे दीजिएगा, and all your worries will be gone। मैंने ये एक्चुअली इसलिए मंगवाई थी, मेरी बच्ची तो अभी बहुत छोटी, बट मुझे देखना था कि इसमें है क्या ऐसा। एंड माय गायनिक एक्चुअली शी टोल्ड मी कि she handed over this comic to her daughter when she came in her puberty, and she told me, my gynaec told me कि उनकी बच्ची बहुत ज्यादा, she just loved this and वो कई बार इसको पढ़ती है। और एक्चुअली इसमें पूरी चीजें हैं, सारी चीजें जो हमें अपनी बच्चियों को इजी लैंग्वेज में समझाना चाहिए। सो हियर with the next slide in form of some pictorials, as you can see there are 4 pigs. In one pig egg matures, in one pig egg is released, in one pig endometrium is developed, in one pig it is menstruation, and endometrium is shedding. That means this is a cycle। एग बना, ओवम बना, उसके बाद अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो फिर प्रेगनेंसी हुई। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ दैट मीन्स अभी मेंस्ट्रुएशन के थ्रू अभी एंडोमेट्रियम और वो शेड ऑफ होने लगेंगे, एंड दैट इज व्हाट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। आई वुड लाइक टू आस्क कि हम सभी इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, और अगर हम यहाँ पर ही हम डिस्कस करें कि आप इस चीज को अपनी बच्ची को किस तरह से समझाना चाहेंगे। Any of you, just a try. Sorry, please, will you repeat the question? हाँ, मैं जस्ट ये पूछ रही हूँ कि हमें ये प्रोसेस बहुत अच्छे से पता है, राइट?
कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि मतलब आप क्या समझते हो कि महीना आना, इसको आप अपनी भाषा में क्या कैसे आप डिफाइन करोगे इसे? To our daughter or to ourselves or what? किसको बताना? या टू योर डॉटर, टू योर डॉटर। आई थिंक पहले तो हम बस उसको थोड़ा सा ही इतना डीपली तो नहीं समझा पाएंगे। शुरुआत में तो बस हम उसको यही बोल सकते हैं कि लाइक द ब्लड विल कम आउट एंड दिस ओनली a basic thing we can explain, and later on we will explain in detail. Okay, but when you were explaining her, your daughter, that every month you will have bleeding होगा Yeah, you will have आपको, bleeding. वेजाइना से bleeding होगा आपको 5 to 6 days, हाँ. and that is a normal process, so need not to bother, है ना। उसके लिए आपको सैनिटरी पैड अप्लाई लगाना पड़ेगा और इस तरह से आप उसको समझाओगे, राइट? हाँ, राइट। ओके, बट व्हाट इफ मैम, अगर आपकी बच्ची ने वहां आपसे पूछ लिया कि मम्मा वो ब्लीडिंग आ कहाँ से रही है और क्यों, तो आप कैसे आंसर करोगे? My daughter is 12 years, Pranita, and I explained her. I told her that because उसकी एक फ्रेंड ने उसको पूछा कि तेरे को पीरियड्स आ गए क्या, वो फ्रेंड को पीरियड्स आ गए होंगे। My daughter said no, मुझे अभी नहीं आए हैं, बट मुझे पता है अगर आएंगे तो क्या करना है। तो उसकी मम्मा ने मुझे बोला कि why Ruchi you explained so early because she is 12 this month only. So I explained my daughter कि बेटा अब आप 11 years, जब 11 बर्थडे था उसके बाद मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि अब आप 11 years के हो गए हो, अब आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, आप बड़े होना शुरू हो रहे हो, अब आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी बॉडी डेवलप होगी, आपको हेयर्स आएंगे, आपको थोड़ा सा गंदा भी लगेगा कि क्या गंदगी हो रही है, बट यू हैव टू मैनेज, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं हमारी बॉडी में बदलाव आते हैं, हमारी बॉडी के जो चेंजेस है ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब आपको मम्मा के हार्मोन्स की जरूरत नहीं है जो आपको बेबी में मिला था, अब आपके खुद के हार्मोन्स बनेंगे, आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे। बस इसमें एक ही छोटा सा प्रॉब्लम है कि हर मंथ आपके यूट्रस में से, जो कि आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वहां से कुछ ब्लड आना शुरू होगा। आपको उसका ध्यान रखना है, जब भी ऐसा कुछ हो जस्ट टेल योर मम्मा कि ऐसा हो गया है। देन शी सेड ओके। जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे तभी एक बार ऐसा हुआ कि उसको लगा शी गॉट पीरियड्स, शी स्ट्रेट फॉरवर्ड केम टू मी, मम्मा मेरे को पीरियड्स आ गया। आई सेड व्हाई? मम्मा देखो आपने बताया था ब्लड आएगा, तो मेरे को ब्लड आया है। आई नोटिस, मैंने कहा ना बेटा ये इन्फेक्शन है, आपने पानी कम पिया है। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि अच्छा वो आपने मुझे बताया। फिर उसने मुझे पूछा अब ये यूट्रस क्या होता है, आपने मुझे बोला था यूट्रस में से आएगा, तो यूट्रस क्या है मम्मा बताओ। फिर आई टोल्ड हर यूट्रस हमारी बॉडी का सबसे स्मार्ट ऑर्गन है जो हम गर्ल्स को स्ट्रॉन्ग पावर देता है। देखो पापा लोग इतना सारा काम कर पाते हैं क्या? नहीं ना, जितना मम्मा करती है। 6 o'clock से उठ के 11 o'clock तक मम्मा पूरा काम करती है, सब मैनेज करती है, पर मम्मा नहीं थकती। और पापा सुबह से शाम काम करे तो उनको 2 चाय ज्यादा लगती है ना। तो शी सेड हाँ। मैंने कहा बस वी नीड आवर यूट्रस और उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। हर मंथ में उसको ब्लड सर्कुलेशन मिलता है तो वो भी थक जाता है, तो उसको उसका ब्लड निकालना होता है ताकि वो फ्रेश ब्लड एक्यूमुलेट कर सके। देन शी गॉट द थिंग कि मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है यूट्रस और यूट्रस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दैट इज द थिंग आई टोल्ड हर। प्रणीत आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट योरसेल्फ। That is actually amazing, Yes. ma'am. The way you explained this thing to your daughter, no, this is actually a good guide for me also. क्योंकि आप एक्चुअली बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने कहा ना वो एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है, हमेशा। एंड जस्ट मिनट। अच्छा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर। जब भी मेरे पीरियड्स होते हैं तो लाइक अपनी घरों में हम काम नहीं करते, किचन में नहीं जाते हैं, तो वी यूज्ड टू से कि लूज मोशंस हो रहे हैं, मैं ये बोलती हूँ आई एम हैविंग माय लूज मोशंस, आई कांट गो इन द किचन, नाउ यू हैव टू हेल्प मी। तो माय यंगर डॉटर वन डे सेड मम्मा अब आज तो मैं भी किचन में नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे लूज मोशंस हो रहे हैं, एंड शी इज जस्ट 8 years। तो समृद्धि माय एल्डर डॉटर टोल्ड मम्मा वाले लूज मोशन अलग होते हैं, जब बड़ों को लूज मोशन होते हैं तो वो किचन में नहीं जाते, पर बच्चों वाले अलग होते हैं क्योंकि हम दूध पीते हैं और वो कॉफी पीते हैं, इसलिए आपको किचन में जाना अलाउड है। Yeah, that is their level of understanding. Very sweet. Yes, but both of them understand. Yeah, I just want to think if there is something. Yeah.
मीन्स दी दैट इज व्हाट मैम कि अगर हम बाई चांस हमारी बच्ची हमसे पूछे तो वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ दिस एंड हमें उससे सिंपल तरीके से कुछ भी एक उसकी जो क्वेरी रहेगी ना उस टाइम दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ प्यूबर्टी दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग अ लॉट and you know if they don't get a proper answer they get irritated a lot, they get irritated often and इसीलिए हमको उनकी वो Actually, क्वेरी यस मैम इसीलिए हमको उनकी वो क्वेरी उनके लेवल पे रिजॉल्व करनी है। तो वो आप सोच के रखना कि इन केस उसने ऐसा कुछ पूछा तो व्हाट यू हैव टू आंसर, you can just answer just ma'am like ma'am answered and you can even tell her कि there is a I think अभी तो ना बहुत एडवांस हो चुका है सब कुछ, we have so many good animated videos on YouTube, तो आप उनको वो दे दो, आप उनके साथ वो बैठ के देखो कि बेटा ये पॉज कर करके आप उनको समझा सकते हो बहुत इजीली, बहुत ही इजीली। You can even tell them कि see as ma'am told कि we are much more stronger, क्यों बोलते हैं female stronger है, क्योंकि we have a extra organ in our body and that is uterus and you know it is the home for a baby, सबकी मम्मा लोग के पास था, हम उसी में से बाहर निकले एंड उसी का एक पार्ट होता है ये एंड दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल यू नो दिस जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है दैट मीन्स एक्चुअली इट प्रिपेयर्स अवर बॉडी एंड इट इज द इंडिकेटर दैट अ गर्ल कैन गेट नाउ प्रेग्नेंट। तो हम उस तरह से सबका अपना अपना तरीका है, हम कैसे भी अपनी बच्ची के दिमाग में वो चीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट it should be in a proper right manner. So moving on to next slide, because our topic is also having what exactly is menstrual hygiene. So menstrual hygiene management, we should say menstrual hygiene management is defined as women and adolescent girls using a clean menstrual management material to absorb or collect blood that can be changed in privacy as often as necessary for the duration of the menstruation period. उन 5, 6, 7 दिनों के दौरान उन पूरे दिनों के दौरान तरीके से साफ सफाई से रहना और प्रॉपरली वो हमें रिसोर्सेज मिले जिनको हम अच्छे से यूज कर पाए प्राइवेसी में, दैट इज व्हाट menstrual hygiene management is. क्या हम सब we all are we all aware about it? And here I actually want to raise a question that please tell me do we celebrate any day like this? no idea. No idea. No Okay. idea. Okay, fine. All of you must be understood this concept is now known to everyone. We all know actually Yes. कि हम तो safe menstrual hygiene practice करते हैं. This is actually not for us. This is for the girls who are not getting these resources. This is for them. So moving on to next slide. My next slide is actually having this thing only. Yeah. So this is a slide which is having menstrual hygiene day. Menstrual hygiene day is celebrated all over the world on 28th May. मासिक धर्म स्वच्छता दिवस ऐसा बोलते हैं हम हिंदी में and it is called menstrual hygiene awareness day और menstrual hygiene day, MH day, MHD, इसको इस तरह से इसका short form रहता है and it was initiated by a German based NGO Wash United in 2014 and WASH, this WASH, it is an acronym that stands for water, sanitation and hygiene. And you know this particular day, why it was celebrated, the significance, the importance of this menstrual hygiene day is to break taboo on talking about periods. That was a simple funda.
and to raise awareness about the proper water and sanitation to every female. That is the right of every female. And we don't even think of कि किस तरह से जो बच्चियां होती हैं और जो फीमेल्स होती हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, how they used to manage in their periods, no, that is actually pathetic. And that is why they used to catch a lot of infections, a lot of urinary tract infections, a lot of other infections, and sometimes they may be life threatening. So this is menstrual hygiene day, and we in our team, I have started, as ma'am रुचि मैम इंट्रोड्यूस्ड दिस थिंग. हम लोगों ने लगभग 3 साल पहले स्टार्ट किया था ये हमारा ग्रुप. एंड तभी ऐसा था कि हम लोग जब उस साल ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे आया, एंड सीरियसली जब तक मैंने ये ग्रुप नहीं बनाया था तब तक मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह का कोई डे मनाया जाता है. बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस एरिया, आई वेंट इन डेप्थ ऑफ ऑल द थिंग्स अबाउट इट. डेफिनेटली जब आप कोई एग्जाम देने जाते हो तो आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हो, जस्ट लाइक दैट मैंने उस चीज के बारे में सब कुछ पढ़ा, सब कुछ. एंड तब मुझे पता चला बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स दैट वाज लिटरली शॉकिंग. दोज फैक्ट्स वर लिटरली शॉकिंग. यू नो, आई मेट अ फीमेल एंड शी वाज जस्ट, उसके बच्चे थे, 3 या 4 बच्चे थे. And she told me कि she has this, उसको बहुत ज़्यादा excessive menstrual discharge होता था. And she said कि उसने hysterectomy उसका करवा लिया. Means you understand this thing? Hysterectomy means पूरा का पूरा यूट्रस हटवा लेना, जिसे हम कहते हैं ना बहुत आम भाषा में, जिसको बोला जाता है कि बच्चेदानी का ऑपरेशन, बच्चेदानी हटवा देना. जिस टाइम यूट्रस आपकी बॉडी से हट जाता है, आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, बिकॉज सो मेनी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स दे जस्ट स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग इन योर बॉडी, which are important for the regulation of calcium, which are important for the absorption of vitamin D in your body, and which actually prevents you from getting osteoporotic. Means सोचिए आपकी कितनी लंबी एक चेन है. And that is why menstrual hygiene day जो था वो हमने मनाना स्टार्ट करा. हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं ये हर साल. लास्ट ईयर एक्चुअली लॉकडाउन था because of this COVID crisis, but we celebrated the whole week as menstrual hygiene awareness week, and this time also we will celebrate it virtually only, and we did a lot of amazing things, you know. And seriously, when I started working in this field, no, पहले मैं periods शब्द बोलने से भी डरती थी, जबकि मैं खुद डॉक्टर हूँ still, क्योंकि बचपन से वही सुनते आए हैं, उसी तरह से हमारा ब्रॉटअप हुआ है, तो वो मेंटेलिटी बन गई है. बट फिर अभी ऐसा हो गया है ना, यू नो, आई डोंट इवन थिंक फॉर अ सेकेंड. मैं कितनी बार कहीं भी आराम से ये वर्ड बोल देती हूँ. माय फादर, माय ब्रदर्स, वो तो बहुत पहले ही उनके सामने मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज दे वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट आई एम कंडक्टिंग सच टाइप ऑफ वेबिनार्स, आई एम कंडक्टिंग सच टाइप ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स. सो दैट इज व्हाई दिस इज अ थिंग, दिस टैबू. जब ये नेचुरल चीज है, और मैंने तो कंसेप्ट इस तरह से डेवलप करना स्टार्ट करा फीमेल्स में और सब जगह, कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, आप उसे खुशखबरी मानते हो. आप शुरुआत में उसको बताते नहीं हो कि भाई नजर ना लगे ऐसा, फिर आप उसको सेलिब्रेट करते हो, आप गोद भराई करते हो, आप यू सेलिब्रेट दैट इन सो मेनी वंडरफुल वेज. तो जब प्रेगनेंसी एक सेलिब्रेशन का पॉइंट है, तो फिर पीरियड्स आना सेलिब्रेशन का पॉइंट क्यों नहीं है? पीरियड्स आना मतलब ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बात भी ना करें. तो बाय दैट इनजस्टिस, अगर पीरियड नहीं होगा
तो क्या एक गर्ल प्रेग्नेंट होगी? Period is the indicator that now a girl is ready to get pregnant. So we should think like that. We should think like that. And that is why menstrual hygiene day is very, very important in our lives. And here in this pic, I just want to share this pic with you all. आप सभी लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा, and as we have discussed that लगभग 336 million girls and women they are menstruating in India, and over 121 million are using disposable sanitary pads. लगभग 48% रूरल विमेन जो हैं ये सैनिटरी पैड्स लगाती हैं, बाकी अभी भी यूज नहीं करती हैं. दे आर मैनेजिंग द थिंग्स लाइक कुछ फीमेल्स तो यू विल वंडर कि वो सूखे पत्ते वगैरह वहां पर लगा लेते हैं. Some are means there are so many pathetic ways in which they are managing their periods. But the shocking fact is 70% of adolescent girls in India, they remain unaware of menstruation till the first occurrence of menstruation, and so many of them they just drop out from their schools just because they don't have a proper toilet, a proper washroom, proper sanitation and proper hygiene practices. That is why. So the thing is कि बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, समझाने के लिए, बट एक तो टाइम हमें अलाउ नहीं करता है. स्टिल हमने काफी अभी बात कर ली है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. See, in low income countries, the women's choice of menstrual hygiene materials are often limited by cost, availability and social norms. Adequate sanitation facility नहीं होती है, पानी नहीं होता है, and feminine hygiene products वो भी नहीं होते हैं. So creating a culture that welcomes discussion and makes adequate education for women and girls is of equal importance. एंड ये हमने बात कर ही ली है कि बहुत सारी बच्चियां स्कूल जाना छोड़ देती हैं. ये मैंने एक पिक ऐड करा है. यू नो नेपाल में इस तरह से ऐसे एक वो बना देते हैं शेड जैसा बोलना चाहिए. अ गर्ल हैज टू स्टे देयर. दिस इज वेरी शॉकिंग एंड इससे भी ज्यादा बेकार चीजें आज के टाइम में भी कई जगह होती हैं. उनको वहीं पर रहना होता है अराउंड 6 to 7 days जब तक वो मेंस्ट्रुएट होती हैं, जब तक उनका ब्लीडिंग होता है तब तक उनको यहीं पर इस तरह से आइसोलेट रखा जाता है. हम अभी बहुत अच्छे से जान गए कि आइसोलेट रहना और क्वारंटीन रहना किसे कहते हैं. बहुत अच्छे से वी ऑल नो वेरी वेल दिस थिंग, नो, बिकॉज दिस कोविड दिस taught us. But these girls they are handling and they are getting this punishment every month when they are on their periods. Wow. And recently I just saw a fact that नेपाल का ही एक केस था. वहां पर एक बच्ची थी, उसको क्योंकि जब वो आइसोलेट वो इस तरह से रह रही है, उसको अलाउड ही नहीं रहता है उन लोगों के कि वो घर में एंटर ही कर पाए, घर की चौखट पे भी आ पाए. एंड बिकॉज उसको 2 दिन तक खाना नहीं मिला तो उस कारण से वो उसकी डेथ हो गई थी. So that is how, you know, the situations are very odd with so many females. And here only I haven't added that slide कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें बताना चाहिए अपनी बच्चियों को जब वो when they start menstruating. हमको उन्हें इस फैक्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि दैट इज अ नेचुरल थिंग, सो नीड नॉट टू वरी. द ओनली थिंग डूज ये है कि प्रॉपर एक अच्छा डाइट लेनी चाहिए, उस दौरान और अच्छे से लेनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आपकी बॉडी से along with that waste blood and along with that endometrium and vaginal blood आपके बॉडी से ब्लड निकल रहा है. सो यू विल डेफिनेटली हैव सम काइंड ऑफ वीकनेस. You will definitely have some kind of weakness in your body.
सो दैट इज वाई आपको वहां पर अच्छा डाइट लेना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए। यहीं पर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि कई बार हम अपनी बच्चियों को ये बोलते हैं कि आपको एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहे हैं, दैट इज नॉर्मल, दैट इज सो नॉर्मल। डिसमेनोरिया बोलते हैं उसे बोला जाता है डिसमेनोरिया, पीरियड्स के दौरान जो बहुत बुरी तरह से दर्द होता है। सी माइल्ड एब्डोमिनल क्रैम्प इज नॉर्मल, थोड़ा बहुत दर्द होना ठीक है, बट जब आपकी बच्ची को बहुत ज्यादा दर्द होने लगे, इतना कि वो उसका कुछ भी डेली काम नहीं कर पा रही है, वो कुछ भी ऐसा, उसका पूरा डेली की दिनचर्या अफेक्ट हो रही है, उसका रूटीन अफेक्ट हो रहा है, वो स्कूल नहीं जा पा रही है, शी इज रेस्टलेस, शी इज सो इन पेन and she is having a lot of trouble during periods, that is dysmenorrhea, and dysmenorrhea is not at all normal। ये हम सबको समझना पड़ेगा कि डिसमेनोरिया कभी भी नॉर्मल नहीं होता है। इसीलिए जब आपकी बच्ची को ऐसा कुछ हो, यू प्लीज सीक अ गायनेकोलॉजिकल एडवाइस, एंड बिफोर दैट even dysmenorrhea can be managed by some exercises, by some other things also, so need not to go to a gynec at first। आप पहले उन सारी चीजों से उसको मैनेज करने की भी कोशिश कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू इज, व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, आप उसको बोलो कि उस टाइम पर वो रिलैक्स रहे, कंप्लीटली रिलैक्स रहे, जेंटल वो म्यूजिक वगैरह सुने, वो अच्छे से वॉक कर सकती है। इन स्पाइट ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ, अगर वो बहुत ज्यादा ऐसा विगरस वर्क करती है तो वो हेवी वेट एक्सरसाइजेस वगैरह उसको नहीं करनी, थोड़ा जेंटल लाइट एक्सरसाइजेस वहां पर उसे फॉलो करनी है। और सेकेंडली वो कैफीन वगैरह को अवॉइड करना चाहिए बच्चियों को, उससे जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं वो बढ़ते हैं। और वन मोर थिंग, डार्क चॉकलेट वो खा सकते हैं, उससे उनको पीरियड्स के टाइम पर थोड़ा रिलैक्स लगता है, अच्छा लगता है। हॉट वाटर बैग दे कैन कैरी, what they can do a gentle hot fermentation, and that is how they can feel relaxed। and हमें उनको रिलैक्स रखने की as much as we can हमें कोशिश करनी चाहिए। There are some excellent yoga poses। हम लोग ने लास्ट ईयर जब menstrual hygiene week मनाया था तो हम सारे टीम मेंबर्स जो हैं हम लोगों ने एक अलग अलग योगा पोज करे थे। So you know there are so many yoga poses which actually help your daughter to get a ease in periods। Maybe we can discuss these yoga poses later on। अभी क्या टाइम भी बहुत हो रहा है, and we are still having this Q&A session also। So you can even go to my page and you can see what are the yogasanas that are helpful। Now coming here to this new concept, I've asked Ruchi ma'am and she told me कि menstrual cup को मैं introduce कर सकती हूँ आप लोग के बीच। So just an introduction। Along with all the products for menstrual cycle, for menstruation in our periods, sanitary pads, tampons, and kapda, by far menstrual cup is the best option। इसलिए बेस्ट नहीं है क्योंकि मैं इसे यूज कर रही हूँ या मेरे टीम मेंबर्स इसे यूज कर रहे हैं। ये बेस्ट क्यों है, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहली चीज तो ये कि menstrual cup इस तरह का दिखता है, and I even have my menstrual cup with me। मैंने सोचा एटलीस्ट इसकी शक्ल तो आप लोग को मैं दिखा ही सकती हूँ, स्लाइड में भी दिखा सकती हूँ और यहाँ पर भी। तो see, this is menstrual cup, this is menstrual cup, and you know what it does, it is just like a small bucket, एक छोटी सी बाल्टी जैसा है। एंड इसको हम आसानी से, बिकॉज ये सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन इज अ मटेरियल जो एकदम आपका बॉडी फ्रेंडली मटेरियल होता है,
वो आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाता, एंड इट कैन इजीली गेट इनसाइड योर वेजाइना आराम से बिल्कुल। और उसके बाद ये क्या करता है वहां पर, यू कैन सी इन द नेक्स्ट पिक, this is a menstrual cup, and what it is doing, it is just collecting the menstrual discharge in it. It is just collecting the menstrual discharge. Sanitary pads क्या करते हैं, वो absorb करते हैं और वो absorb करके उसी जगह पर रहते हैं। The only difference, sanitary pads vagina के अंदर हमें insert नहीं करना पड़ता, tampons होते हैं वैसे जिनको insert करना पड़ता है, लेकिन sanitary pads हम we used to keep on our panty and we used to apply it. Menstrual cup को हमें vagina के अंदर डालना पड़ता है, that is a thing, but वो blood को collect करता है और उसके बाद आप इसे ऐसे निकाल कर और फिर आप उसको blood को आप वॉश ऑफ कर सकते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से वॉश कर सकते हैं, एंड यू कैन अगेन अप्लाई इट, यू कैन रीयूज इट। And moving on to the benefits, quickly moving on to the benefits of menstrual cup. The benefits of menstrual cup are they don't affect your vaginal pH. Vaginal pH means जो healthy environment है हमारे vagina के अंदर उसको affect नहीं करता है menstrual cup. You can change this menstrual cup in 6 to 8 hours. जब आपका हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड ब्लड रहता है तब। एक जो सिंगल सैनिटरी पैड रहता है वो सिर्फ 5 ml तक ब्लड कलेक्ट कर सकता है, बट योर मेंस्ट्रुअल कप ये लगभग 30 ml तक ब्लड को कलेक्ट कर सकता है। यहीं से आप समझ सकते हैं कि इसको आप एवरी 6 to 8 आवर्स में चेंज कर सकते हैं। The third pick is saying that you will feel good. You will actually feel good. And sometimes, you know, when I started using it, मुझे अभी ऐसा लगता है कई बार कि मेरे पीरियड्स है ही नहीं। Sometimes I just forget that I am on my periods. And the fourth wonderful fact is it can last for 5 to 10 years. Just think, just imagine. Means ये जो मैंने एक menstrual cup लिया है ना, अभी मुझे लगभग 5 से 10 साल फिर भी चलिए मैं 5 सोच लूं, मुझे 5 साल तक बिल्कुल अब कोई खर्चा नहीं करना। I will again reuse it. The earth will love you, क्योंकि सैनिटरी पैड, एक सैनिटरी पैड को अर्थ के अंदर कंप्लीटली डिकम्पोज होने में 800 साल लगते हैं। That is a hard fact. That is damaging our nature. And हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि हमें व्हाइट कपड़े पहनने हैं कि नहीं पहनने, बिकॉज ये लीक नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता। इट इज period safe, it is period friendly. So that is my introduction about menstrual cup. Actually I used to take a long webinar on menstrual cup only, but this time actually Ruchi ma'am, thank you ma'am that you allowed me to introduce this my favorite topic, that is menstrual cup nowadays. And we'll catch you soon for this again. We'll catch you soon for this again, Pranita. Don't worry. Okay, we are not leaving you. This Okay, time Tibeti was the main concern because Abhyuday Club is Abhyuday Club के ज्यादातर members के बच्चे Tibeti एज में ही हैं। हम 65 लोगों का ग्रुप है और इस 65 में I guess 40 ऐसे हैं जिनके बच्चे 9 years to 14 years में हैं। तो we have a big bash of this things. इसलिए हमने अभी puberty and menstrual hygiene को main cover up किया है। But sooner menstrual hygiene day हम आपके साथ मनाएंगे कप्स को डिटेल समझते हुए। Okay, ma'am. Sure, ma'am. Sure. So, ma'am, I have a query. Yeah, please. Whenever I heard about this menstruation cup, ma'am, your voice is breaking, ma'am. नमिता आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। मैं हमेशा मतलब ये सोचती थी कि लाइक वी आर इन स्लीप, व्हेन वी आर इन स्लीपिंग पोजीशन ना, लाइक जब स्लीपिंग पोजीशन में होते हैं जी तब भी ये इफेक्टिव मतलब थोड़ा सा मतलब उस टाइम अनकंफर्टेबल या कुछ ऐसा नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता मैम। मतलब कि आप इमेजिन करिए कि जब हम सैनिटरी पैड लगाते हैं तो हमें कितनी बार सोचना पड़ता है अपनी पोजीशनिंग के बारे में कि हम ऐसे रहें, हम ऐसे सोएं, हम इसको पीछे लगाएं, ये लीक ना कर रहा हो। मतलब पूरे रात हमको वो थॉट एक रहता है।
बट यू नो मेंस्ट्रुअल कप के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता मैम। आप मतलब बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि ये लीक करेगा या कुछ भी ऐसा होगा। नहीं, लीक आई वोंट से, बट लाइक जो डिस्चार्ज हुआ है हमारी बॉडी से, हाँ वो मतलब मुझे ऐसा था, बता रही लाइक इट वो रिवर्ट बैक करेगा या वही रहेगा, या मतलब थोड़ा सा वो मन में वो रहता है। नो मैम, नो मैम। See, the blood that is coming down to the cup, it will not go it will not go back to the vagina. No, there will be no chances of it. यहीं पर वो आपने थोड़ा बहुत अच्छा Yeah, experience है। यहीं पर मैं एक क्वेरी एक्चुअली शायद आई हैव गॉट दैट पॉइंट जो नमिता बोल रही थी। अभी जैसे हम स्टैंडिंग पोजीशन में या सिटिंग पोजीशन में होते हैं तो ग्रेविटी नीचे एक्ट करती है। व्हेन वी आर इन द लाइंग पोजीशन लाइक स्लीपिंग पोजीशन, उसमें बॉडी इज पैरेलल टू द ग्रेविटी, लाइक द परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटी ना, तो वो फिर भी इफेक्ट करेगा। बिकॉज मुझे भी ये डाउट है कि आपका ब्लड इसमें है एंड दैट इज लाइक कनेक्टेड टू वेजाइना, तो वो अनहाइजीनिक या ऐसा कुछ तो नहीं होता, मतलब वो थोड़ा सा ये मुझे भी डर है थोड़ा सा। मैम ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जस्ट Okay. डोंट वरी। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपका जो कप है वो एक बहुत अच्छा, इट इज क्रिएटिंग अ गुड सक्शन इन योर वेजाइना। तो वहां जाके ना ऐसे करके पूरा ऐसे पॉप करके वहां पर आ गया है, ठीक। अभी वो वहां पर अच्छे से एक सील जैसा बना लेता है, ठीक। एंड उसमें 4 होल्स होते हैं। वो होल्स क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को एंड उसके लीक को वो प्रिवेंट करते हैं। सो नथिंग इज हैपनिंग, जस्ट बी श्योर। एक्चुअली me and my team members, we are using it from last 1.5 years. तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई एंड इट इज अमेजिंग, इट इज दैट अमेजिंग कि मैं भी सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं वापस से मैं सैनिटरी पैड कभी भी यूज कर पाऊंगी। ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती एंड आई ऑलवेज कैरी दिस इन माय बैग नाउ, क्योंकि मैम आई एम हैविंग वन डाउट। हाँ मैम क्या ये हम लाइक गर्ल्स को दे सकते हैं, छोटी बच्चियों को, मतलब स्टार्टिंग फेज में दे सकते हैं? yes ma'am, For them? you can definitely give them. See, menstrual cup, it comes in so many size. It Okay. comes in so many size, and you can actually give it to your small girls also. Just be careful with the size. When you purchase it, no, there are small, medium, and large size. I'll be going to explain this in detail whenever we'll have a webinar on menstrual cup, and then I'll tell you कि किस तरह से वो साइज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक जो बहुत कॉमन सी चीज है वो ये है कि भाई जो 30 के ऊपर हैं वो यूजुअली लार्ज साइज प्रेफर करें। Those who are having a vaginal delivery and all, even cesarean भी हुआ है, बट वो लार्ज साइज उनको कंफर्टेबल रहता है। 30 से नीचे वालों को मीडियम और 20 से नीचे वालों को स्मॉल साइज, एंड समटाइम्स 20 से नीचे वालों को स्मॉल एंड मीडियम डिपेंडिंग ऑन द बॉडी साइज। या ओके मैम। मैम एक और क्वेश्चन है मुझे, वो थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा पर्सनल टाइप है। नहीं मैम, प्लीज पूछिए। नहीं एक्चुअली जो मतलब इनके आर्मपिट्स के हेयर्स वगैरह जो होते हैं या स्टार्टिंग में जो बच्चों के होते हैं, जी जी, तो आजकल ड्रेसेस वगैरह सब इस तरह के पहनते हैं प्रोग्राम्स में या उसमें, तो हम उनको क्लीन करने के लिए क्या ऑप्शंस ले सकते हैं, या मतलब बच्चियों के साथ हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। मतलब यू वांट टू आस्क के जो उनके प्राइवेट पार्ट्स के हेयर्स जो हैं उनके, तो अब जैसे वही होता है ना कि हम थोड़ा सा बच्चों के साथ इस बारे में बात करना भी उतना पसंद नहीं करते, या हम लाइक बट वही है कि दे आर वेयरिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल। छोटी बच्चियां हैं अगर 13-14 इयर्स की भी, एंड दे आर हैविंग हेयर ग्रोथ, तो उनकी क्लीनिंग के लिए हम क्या प्रोसेस अभी से अपना सकते हैं या क्या करना चाहिए हमें? See, that's a very good question, ma'am. That is actually a very nice question. And definitely कभी किसी एक दिन आपकी बच्ची भी ये चीज आपसे पूछ सकती है। And you know, because जो
फीमेल्स और मेल, उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो होता है स्ट्रक्चर, दैट इज वेरी डिफरेंट। एंड बिकॉज हमारा जो रहता है ये, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो फीमेल वेजाइनल पार्ट होते हैं, ये सारे ये बहुत ही डेलिकेट सेंसिटिव होते हैं। वो इस तरह से सिचुएटेड रहते हैं कि इन्फेक्शन बहुत इजीली हमें कैच करता है। दैट इज वाई जब हम पुअर सैनिटेशन या कभी हम ऐसे इम्प्रॉपर अनहाइजीनिक हम वॉशरूम ही यूज कर लेते हैं, वी इजीली गेट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो एक तो वो आपको गुड प्रैक्टिस है कि आपको अपनी बच्ची को ये चीज सिखानी चाहिए, समझानी चाहिए कि वो पुअर जो हाइजीन प्रैक्टिस है उनको फॉलो ना करें, वो इस तरह के वॉशरूम्स में ना जाएं, पब्लिक रेस्टरूम्स में ना जाएं। एंड इफ एट ऑल वो ऐसी जगह पे स्टक हो गई जहां उन्हें जाना पड़े, तो व्हाट दे शुड डू, नेवर एवर दे शुड सिट ऑन द कमोड्स। जो पब्लिक रेस्टरूम्स में और थिएटर्स में और सब जगह जो कमोड्स होते हैं, उन पर नहीं बैठना चाहिए कभी भी। व्हाट दे शुड डू इज, उनको उस पर हमेशा हाफ स्क्वाट करके बैठना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं ना अपने घुटनों को मोड़कर, जो हमारा इंडियन टॉयलेट का सिटिंग होता है, इंडियन टॉयलेट स्टैंडर्ड। यस, उस तरह से ही हमको लगभग बैठना चाहिए। एंड वी शुड नॉट टच आवर थाइज देयर ऑन द सीट। Okay. That is one thing we should always tell our daughters, and we should also follow this type of thing. And regarding the cleaning and shaving of pubic hairs, see, अभी भी काफी सारा controversial thing है ये। Yes, आप उनको ये चीज बिल्कुल बता सकते हो कि they should nicely but gently clean their pubic hairs. Yes, ma'am. कभी कभी क्या होता है ना, हम ऐसा बताते हैं उनको, हम कहते हैं कि भाई सफाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप बिल्कुल आप इस तरह से अच्छे से सोप लो एंड यू शुड जस्ट डू अ गुड वॉशिंग इन दैट एरिया। Yes, ma'am. बट दैट सोप, नो, इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ केमिकल्स। Yes, ma'am. एंड इट इज हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इट इज, ये बिल्कुल मना किया जाता है कि वो सोप वगैरह आपके वेजाइना के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो what actually you should do, आपको अपनी बच्ची को ये बताना है कि while taking a shower, what they should do, उनको अपने legs apart रख के बैठना चाहिए। and they हल्का गुनगुना पानी उनको कई बार उस जगह पे डालना चाहिए और जस्ट अपने हाथ से जेंटली उस एरिया को क्लीन करना चाहिए। That is the advice that is recommended so in everywhere. Okay, you can ma'am. read it. Yes. तो आजकल एक ये सब भी चल रहे हैं, there are so many vaginal wash and all. Yes, ma'am. Even we should not use them also because they clearly interferes with the good bacteria of the vagina. हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बेड भी, तो जो गुड बैक्टीरिया है उनको वहां रहना है बॉडी में। क्यों? क्योंकि वो उस जगह पे, इसलिए क्योंकि उस जगह की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो अगर हम वहां पर इस तरह का कोई भी वॉश लगाते हैं एंड दे से कि इट्स केमिकल फ्री, नो, इट कैन नॉट बी केमिकल फ्री। दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ केमिकल्स and they actually interferes with the vagina. And there is a gynecologist, Dr. Jen Gunter. She wrote a wonderful book that is the Vagina Bible. And उसमें उन्होंने बताया है कि भाई क्या implications रहते हैं pubic hairs को हटाने के, क्या नहीं। क्योंकि अभी भी controversial topic है, यहाँ पर मैं रुचि मैम से भी वो लेना चाहूंगी कि मैम आप क्या बोलते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब आप वहां से हेयर्स को शेव कर लोगे, आप हटा दोगे, तो फिर क्या होगा, अभी आपका जो पेल्विक और आपके जो वेजाइना है दैट इज नाउ क्लियरली इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। अभी कोई भी इन्फेक्शन जो है ज्यादा जल्दी कैच होगा जब आपके हेयर्स हैं। इवन हमारे नेजल पैसेजेस में भी जो हेयर्स हैं वो बचाते हैं हमें कई सारे इन्फेक्शन से। जब हमारे नोज के अंदर कोई चीज चली जाती है तो हम अचानक से हम छींक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हेयर्स हैं वो उस अनवांटेड मटेरियल को अंदर नहीं जाने दे रहे। Right. Dr. Pranita, yes ma'am. Yes, these are natural preventive mechanisms provided by nature to us
Yes. And what I prefer and I suggest to my kids, क्योंकि since I'm an NDT practitioner और मेरे साथ न्यूरो रिहैब का डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा चलता है, तो नॉर्मली मैं मदर्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि pH बैलेंस मेंटेन करने और इंटीमेट हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप हल्दी का पानी यूज कीजिए। नीम और हल्दी का पानी बॉईल करके एक वाटर बॉटल में आप वॉशरूम में रख दीजिए। दिन में एक बार आप आपके बच्चे वॉशरूम यूज करने के बाद नीम हल्दी के पानी से अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन कीजिए, नैपकिन से उसको ड्राई कीजिए, उसके बाद अंडरगारमेंट्स पहनिए। अगर आप दिन में 1 या 2 बार नीम हल्दी का पानी यूज करते हैं तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। सेकेंड नोट, रही बात प्यूबिक हेयर्स को क्लीन करने के लिए, तो हम उसे शेव पूरी तरह नहीं कर सकते। रीजन बिहाइंड कि वो हमारे नेचुरल सपोर्टर्स है, वो हमारे बॉडी गार्ड है इन्फेक्शन से बचाने। बट ये भी बात उतना ही सही है कि हम लोगों ने तो अपनी एज के साथ मैनेज किया, बट जो अभी यंगर्स है उनको ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। वो टैंगल होना कि इरिटेटिंग होता है, उसमें यूरिन ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं, दे फील इट वेट और इन्फेक्शन भी कैरी होता है। तो इस जगह पर आप सिजर यूज करके मेक देम स्मॉलर सो दैट आप उसको हाइजीन मेंटेन कर सकें। वॉशरूम यूज करने के बाद टिश्यू से ड्राई करें, पैटेड ड्राई, एंड पूरी तरह से शेव नहीं करवाना है बच्चों से, अदरवाइज उनका इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। So these are the 2 points I used to suggest to my kids. That is amazing, Yes, ma'am. It's really nice, and actually, I'm also of the same opinion. But I just want to know about your opinion. Ki actually, like, what to do in these cases? Yes. This is an open talk platform today, so everyone, we all are moms. I found it very comfortable. Questions. Yeah, I found it very comfortable and very nice platform to speak out in such matters, because now my daughter is also growing. Right. We have one more question from Shilpa, I guess. Shilpa, you raised hand. Shilpa, are you there? You raised hand. Yeah, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Hi. Hello. Ma'am, actually, I have 2 sons. मेरा क्वेश्चन बॉयज की तरफ से है। जैसे कि अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, 9.5 year old। तो एक दिन मैं सुपरमार्केट से आई और उसने मेरे पैड देख लिए। तो अचानक उसने ये क्वेश्चन किया कि मम्मा ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो बस आई वाज जस्ट कि मैं क्या उसे बताऊं, मैं उसे कैसे बताऊं। तो मुझे ये जानना है कि आप बॉयज को हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं इस चीज के लिए, क्या करना सही है इस एज में। Very nice question, Shilpa. Actually, I had this. Actually, very nice question. Very nice question. What to do? Very nice question. I faced the situation. I faced the same situation, and what I answer to the son there, कि boys can pee everywhere. They can use any wall in the market, right? Okay, but we girls can't. We can't sit on the market. So this is our diapers. These are our diapers we use when we are going to market. We can't use anything else. So these are our diapers so that we can use it on the way to market, on our kitchen. जब हमें बार-बार washroom नहीं जाना है. This was the thing I explained to one of my friend's son when he asked in front of me. Now, Dr. Pranita, your opinion, your answer about this. Yeah, ma'am. Yeah, that is wonderful, ma'am. And actually, this is a very nice question. And हमारी ज़्यादा responsibility बन जाती है जब we have a boy in our house, our son, to our son, you know. क्योंकि अभी क्या उनका भी तो puberty है ना, and वहाँ पर फिर उनको भी queries रहेंगी। गर्ल्स को हम सब बता देते क्योंकि उनके साथ हो रहा है। हम we often forget कि भाई बॉयज जो है वो भी वही सब उनका थिंकिंग चलता है, उनका और चलता है डबल तरीके से कि ये ऐसा क्यों, अच्छा मतलब ये मम्मा को भी होता होगा, अच्छा मतलब ये सारी लड़कियों को होता होगा। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि बिल्कुल मैम, जैसे मैम ने बताया, आप ये क्योंकि ये एक सिंपल और बहुत स्मार्ट तरीका है और उनकी क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगी। द अदर थिंग यू कैन डू इज, आप उनको सीधे सीधे बता दो कि भाई दिस इज सैनिटरी नैपकिन एंड सी हम हर एवरी मंथ नो मतलब उनको आपको उनको प्यूबर्टी से ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कंसेप्ट। आप सैनिटरी पैड को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप उनको प्यूबर्टी से इंट्रोड्यूस करो कंसेप्ट। आपका बच्चा कितना बड़ा है? Depends on that. 9.5 year old. So you can easily introduce this puberty concept to him because आपको उसको भी तो समझाना है, not just girls.
The boys are even having a lot of changes in their body, at emotional level, at mental level. Yes. बहुत सारे होते हैं changes उनके भी. yes. उनको hoarseness आने लगता है voice का, and they suddenly feel shy about it. क्योंकि क्या होता है कई बार उनके जो peer group है वो हंसने लगते हैं उनके ऊपर, and that is how they start cutting off from them. वो अपने पेरेंट्स से कटने लगते हैं. तो आप उनको ये सारी चीजें बताओ कि दैट इज ऑल नॉर्मल, एंड जस्ट ट्राई टू बी फ्रेंडली विद देम. एंड आप वहां पर ही उनको बता दो, पहले उनके बारे में सब बता के, किसी यहीं पर गर्ल्स में भी कुछ चेंजेस आते हैं. एंड वन चेंज इज कि एवरी मंथ उनको ब्लीडिंग होता है 5 to 6 days के लिए. उस ब्लीडिंग को वो करने के लिए अब वो ब्लीडिंग कहाँ जाएगा, तो वहां पर वो एक डाइपर जैसी चीज यूज करते हैं. Okay. ऐसे Okay, इस ma'am. तरह से आप इजीली उनको बता सकते हो. Okay, ma'am. Thank you. Any other question, girls? Do we have any other question? Then please come up. I guess all are done. Dr. Pranita, that was really nice and wonderful session today we had. Thank And you, we have ma'am. so many. Priyanka is there. Yes, Yeah. Priyanka came up. Priyanka, please. Ma'am, I just want to know, as I first time introduced through menstrual cups by you. So can you just give me where from can I buy this cup, or any brand? Like in pads, Whisper is nice, or we usually buy that, so we know that has been introduced by a mother. So any menstrual cup brand, or from there you can buy it, any place you want to suggest? See, it's now actually अभी तक हमने अभी तक कोई ऐड भी नहीं देखा है इसका, है ना. तो अभी वो ऐसा कॉमन हुआ ही नहीं है कि वो on market Instagram, social media, I have seen social media are promoting menstrual cups. So I'm seeing ads on social media, but not on televisions or somewhere else that we can know. Yes, and you can even follow my page on Insta, and I have given a thorough information about menstrual cup there. So I'll share the link. Ruchi ma'am is also knowing, Sure, must be definitely. knowing. So ma'am, you please convey that to all of them. And here, आपने ऐसा पूछा तो Yes, yes. see, there is no particular brand, Priyanka. You know, menstrual cup में ऐसा है, आपको क्या बातें ध्यान रखनी है कि वो एक तो सिलिकॉन का बना हुआ हो, और जो menstrual cup आप परचेज कर रहे हैं, it is easily available online. It is starting from 250, 300 to 2000 and much more. But see, हम जब कुछ लेने जाते हैं कपड़े, तो हमको पता है ना कि भाई सस्ता रोए एक मतलब बार बार महंगा रोए एक बार, वो वाला फंडा है यहाँ पर. मतलब आप अगर लगभग 700, 800 की रेंज का भी आप menstrual cup लोगे ना, तो it will be very good. कंपनीज का ऐसा है, बहुत सारी कंपनीज हैं. सेफ कप है, मून कप है, पी सेफ है, मतलब रस्टिक आर्ट है, बहुत सारे कप्स अवेलेबल हैं. द ओनली थिंग इज व्हाट सूट्स यू. आप जब उनको सर्च करोगे ना ऑनलाइन, तो आप हर तरह से अपने हिसाब से, एंड दे हैव कम्युनिटीज, वो आपसे बहुत सारी चीजें पूछेंगे, आपके अकॉर्डिंग पूछेंगे, आपका वेट पूछेंगे, आपकी हाइट पूछेंगे, वो पूछेंगे आप मैरिड हैं, आपके कितने बच्चे, अकॉर्डिंगली दे विल सजेस्ट यू कि आपको ये साइज सूट करेगा, आप ये ले लो. Yes. Okay. Okay, so Dr. Pranita, share that link too about the community, right? So I'll Yes, spread in ma'am. the club and the groups. Okay, So ma'am. they will have their part for that. Okay, ma'am. Fine. Anything else, girls? So should we sum up? It's now 5:40 and we have a Yeah. great time with Dr. Pranita. So Actually. much clear and clear talk and smart talks were there, and so many queries of new moms, old moms, new girls, young girls, and everyone. So I would like to invite Renu here for vote of thanks today from Abhyuday Club. Renu, are you there? Renu, are you there? Priyanka, I guess Renu is not there, so I would like to invite. Yes, ma'am, she's coming. Ma'am, she's coming. She came? Okay. Yes. Fine, fine. Yeah. Sorry. Actually, I don't want to. I need to. No go worries. to Take your time. Sorry. So Thank you, Priyanka ma'am,
vote of thanks from your side from behalf of Abhyuday Club. And you spare so much time for us. Hello. Hello. Can you hear me? Yes, Renu, we can hear you. Okay. Thank you so much, Pranita ma'am, for your kind, so much information you have given us, and Ruchi ma'am, you too. Actually, it is possible because of you only. We can connect actually at this COVID time. We can connect to all over the world through some mediums. As this time you were our medium, Pranita ma'am. We will definitely next time call you for the menstrual cup का जो हमारा आधा सेशन रह गया है. We'll definitely call you for that. Thank you so much for your kind words and thank you Wow Studio के जितने भी members हैं and जिन्होंने हमें connect किया. Abhyuday members, thank you so much for your precious time. Ruchi, after thank you so much to you. Thank you, Abhyuday Club, for coming forward for this wonderful session. Thank you, Dr. Pranita, for your wonderful time we had and so many knowledge you shared with us. And definitely we'll catch up soon again with a fresh topic, fresh lectures, and fresh knowledges. Thank you, everyone. So Thank it's you. a bye. Stay home, stay safe. Thank you. Bye. Thank you. Thank you to everyone. प्रणीता अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज म्यूट हो गया है. आई एम एक्चुअली वेरी फॉर्चुनेट कि वहां से स्टार्ट हुआ मेरा पूरा एजुकेशन एंड आपने मुझे एज अ स्पीकर चांस दिया वापस से गुनाह में आके कुछ ऐसा करने का. तो मेनी थैंक्स टू यू मैम. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. Thank you so much Renu ji. Thank you so much Priyanka and thank you so much everyone, each one of you. Okay. So yeah, one more note from Renu Agrawal. We have received a donation of 1,000 rupees for providing sanitary pads to underprivileged society. And from Wow Studio, I am donating again 1,000 rupees for sanitary pad distribution. If anybody else want to go for a social cause or this noble cause, they can message me and we'll transfer all the amount to Pranita's account so that हमारे तरफ से उन महिलाओं को हम हेल्प कर सके जो बहुत सालों से पीरियड्स को एक श्राप के जैसे झेल रहे हैं और हम उन्हें बताएं कि श्राप नहीं एक्चुअल में ब्लेसिंग है. Stay fit, stay healthy. Okay ma'am. Okay girls, bye. Take care. Thank you.